ایک دن میں اور میری بیوی کھانا کھا رہے تھے کہ باتوں ہی باتوں میں میری بیوی کہنے لگی کہ گھر میں بہت سارا ایسا سامان ہے جو مجھے وقت آنے پر استعمال کرنا ہوتا ہے، ابھی اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیا تم میرے لیے کچن کے برابر میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا سکتے ہو جس میں یہ تمام کباڑ رکھ دوں؟ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن میری جیب میں فی الحال گنجائش نہیں تھی میں اس کی یہ خواہش پوری کر سکوں۔ میں نے اس سے 2 مہینے کا وقت مانگا اور 2 مہینے میں نے اپنے کام کے وقت کو دوگنا کر دیا اور اپنی بیوی کی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جیسے ہی 2 مہینے ختم ہو گئے، میں نے اپنی بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے مزدور بلا لیے۔ کچھ دنوں میں ہی میں کچن کے برابر میں اس کی مرضی کے مطابق ایک چھوٹا سا کمرہ بنوا دیا۔ میں روزانہ کام پر جاتا تھا، مگر اس دن کے کمرہ بنوانے کے بعد سے مجھے اپنی بیوی کا رویہ اپنے ساتھ غیر معمولی سا محسوس ہونے لگا۔ وہ کافی چڑچڑی رہنے لگی تھی۔ اکثر میں نے اسے اکیلے میں روتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ میرا دھیان ہرگز اس طرف نہیں گیا تھا کہ اس کے رویے کی وجہ وہ چھوٹا سا کمرہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے اور میرے بیوی کے درمیان کسی بھی بات پر اتنے سالوں میں لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ ہمارے یہاں اولاد بھی نہیں تھی، تو بھی نہ کبھی میں نے اسے طعنہ دیا اور نہ ہی کبھی میری بیوی نے اس بات پر ناشکری کا اظہار کیا۔ اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے ہم بے حد خوش تھے۔ میں اپنی کم تنخواہ میں بھی اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ کبھی اسے غزلیں لا کر دیتا تو کبھی ہم باہر گھومنے جایا کرتے تھے۔ ان دنوں اسے نہ گھومنے پھرنے کا شوق تھا، نہ ہی وہ مجھے اپنی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں کیا کرتی تھی۔ میں بہت پریشان تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ میں اسے ڈاکٹر کو دکھا لاتا ہوں۔ میرے بہت منانے کے بعد وہ میری بات مان گئی۔ ہم ڈاکٹر کی طرف گئے تو ڈاکٹر نے میری بیوی کے رویے کی وجہ کچھ پریشانی بتائی۔ میں بہت پریشان تھا کہ ایسا کیا ہوا کہ میری بیوی کو بہت پریشانی لگ گئی۔ میں نے اس سے بات کی تو اس نے کہا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے لگا یہ پریشانی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ میں دوبارہ علاج کروانا چاہتا ہوں تو اس نے سختی سے منع کر دیا۔ مجھے کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی کی اس بات پر حیران ہوا۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی میرے پاس بچہ پالنے کا وقت نہیں ہے۔ میں اور حیران ہو گیا اور چھوٹے سے گھر میں اسے کھانا پکانے کے علاوہ اور چھوٹی موٹی صفائیوں کے علاوہ بھلا کیا کام ہو سکتا ہے۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے آفس جانے کے لیے کہا، آج میں گھر جلدی آ جاؤں گا اور ساتھ میں میرے کچھ دوست بھی ہوں گے، تو تم چائے کا انتظام کر لینا۔ میری اس بات پر میری بیوی بہت غصہ ہوئی اور ہم میں جو کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی، اس بات پر ہم خوب لڑے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا کہ میں اپنے کسی دوست کو چائے پر لایا ہوں، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ میں اپنے دوست کو چائے پر بلایا ہے اور میری بیوی نے چائے کے ساتھ کچھ چھوٹا موٹا انتظام بھی کیا ہوتا تھا، لیکن اپنی بیوی کی اس بات پر میں بہت حیران ہوا۔ نہ جانے اسے میری جلدی آنے سے پریشانی تھی ابھی میرے دوست کے ساتھ آنے پر پھر ہمارے لیے چائے کا انتظام پر۔ بہرحال میں نے اس دن جلدی آنے اور اپنے دوست کو ساتھ لانے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ کئی دنوں تک ہم میں ناراضگی رہی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ میری بیوی کا رویہ کیوں بدلتا جا رہا ہے۔ اسی دوران ایک دن مجھے سخت بخار ہو گیا تو میں کام پر جانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ میری بیوی نے میری خوب خدمت کی۔ وہ مجھے کچھ پریشان سی لگتی تھی، زیادہ تر وقت کچن میں گزارتی تھی۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ میں اٹھ کر اس کی مدد کروا سکتا۔ وہ میری بہت خدمت کرتی تھی۔ ایک دن میں واش روم کی طرف جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کچن کے پاس بیٹھے ہوئے رو رہی ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوا۔ بہت پوچھنے کے باوجود بھی اس نے مجھے کوئی وجہ نہیں بتائی اور کہا کہ بس دل پریشان ہے۔ مجھے لگا وہ میری بیماری کی وجہ سے پریشان ہے۔ اگلے دن میں گہری نیند میں سویا ہوا تھا، ایک دم سے کھانسی سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے کچھ سرگوشیوں کی آواز سنی۔ میں بہت حیران ہوا، آخر میری بیوی اور میرے علاوہ تو گھر میں کوئی اور نہیں رہتا، تو یہ سرگوشیاں کس کی ہیں؟ میری بیوی کس سے باتیں کر رہی ہے؟ میں بہت پریشان تھا۔
मैं उठकर किचन की तरफ गया, लेकिन मुझसे ज़्यादा चला ना गया। मैं दोबारा बैठ गया। मैंने अपनी बीवी को आवाज़ लगाई। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका वहम है। उन कुछ दिनों में मैंने उसे बहुत मर्तबा किचन के बराबर में बने हुए कमरे से बाहर निकलते देखा था, लेकिन मेरी बीवी ने नहीं देखा था कि मैंने उसे देख लिया है। एक दिन मेरी तबीयत कुछ बेहतर थी तो मैं किचन में पानी पीने के लिए गया। मैंने अपनी बीवी को वहां नहीं पाया। मैं किचन से बाहर आकर उसे ढूंढने ही लगा था कि वह किचन के बराबर में बने हुए कमरे से निकली। मुझे देखते ही वह घबरा गई। उसके माथे से पसीना छूट गया। मुझे लगा ऐसी क्या बात है। उस वक्त मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैं जब भी उसे किचन के बराबर में बनवाए हुए कमरे से निकलते देखता तो मैं सोचता था कि कोई ना कोई ऐसे काम से ही उसे कमरे में जाना हुआ होगा। लेकिन आज उसके माथे पर पसीने ने मुझे कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वह सामान रखने गई थी। मैंने बात को वहीं ख़त्म कर दिया। मैं अपनी बीवी से अब ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरी बीमारी में उसने मेरी खूब खिदमत की थी और मेरा दिल जीत लिया था। कुछ दिनों बाद जब ऑफिस के लिए उठा तब भी बीवी को कमरे में नहीं पाया। मैंने सोचा मेरे लिए किचन में नाश्ता तैयार कर रही होगी। किचन में गया तो वहाँ भी मौजूद ना थी। मैंने वॉशरूम और घर का कोना कोना चेक कर लिया। मेरी बीवी कहीं मौजूद नहीं थी। अभी मैं घर से बाहर परेशानी की हालत में निकलने ही वाला था। कुछ आवाज़ मेरे कान में सुनाई दी और वह आवाज़ मुझे समझ नहीं आई, लेकिन इतना समझ आया कि आवाज़ इस कमरे से आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो वहाँ अंदर से लॉक लगा हुआ था। मुझे काफ़ी परेशानी हुई। मैं कमरे में आया ही था कि मेरी बीवी मेरे पीछे आ खड़ी हुई और उससे पूछा कि वह कहाँ थी, तो उसने मुझसे कहा कि वह सामान सेट करने की खातिर उसी कमरे में मौजूद थी। अब की बार मैंने उसे ये नहीं बताया कि उस कमरे में कुछ आवाज़ सुनी है मैंने, क्योंकि मैं उस बात की खोज लगाना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या है जो बार बार मेरी बीवी उस कमरे में जाती है। ऐसी कौन सी आवाज़ है जो मुझे परेशान करे जा रही है। मैं दिन रात इसी परेशानी में घुलता जा रहा था। परेशानी मुझे खाए जा रही थी। आखिर ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता और मेरी बीवी मुझसे छुपा रही है। मैंने उसे बात का जिक्र जब अपने दोस्त से किया तो मुझे वो एक बाबा के पास ले गया। उसने कहा कि तुम्हें बाबा वह बातें बताएंगे जो हम इंसानों को मालूम नहीं होती। जब बाबा से तमाम बात बता दी तो उन्होंने कुछ दिन का वक्त देकर मुझे बताया कि हमारे घर में आसेब है और वह आवाज़ इंसानों की नहीं, आसेबों की है। पहले पहल तो मैं बाबा का यकीन किया, लेकिन मेरा दिल इस बात पर राजी न था। लगता नहीं था कि किसी आसेब की आवाज़ है। अब यह अक्सर होता था जब भी मेरी बीवी छुपकर उस कमरे में जाती तो उसका मैं पीछा करता था। आवाज़ इतनी हल्की हुआ करती थी कि मुझे कोई आवाज़ समझ में ना आती थी और मैं छुपकर अपनी बीवी को देखता रहता था। मुझ में इतनी हिम्मत ना थी कि मैं बीवी से इस बात को पूछ लूं। मुझे लगता था मेरी बीवी ने मेरी आवाज़ बंद करवा दी है और मैं कभी उसे उस बारे में बात नहीं कर पाऊंगा। आखिर हो क्या रहा था जो मुझे परेशान कर रहा था। मुझे अपने उस दिन के फैसले पर बहुत मलाल हो रहा था। उस दिन मैं अपनी बीवी की बात मानी थी कि मैं उसे कमरा बनवा दूं। कभी मुझे लगता था कि मेरी बीवी इस दुनिया में इंसानों जैसी ही नहीं रही और कभी मुझे लगता था कि मेरी बीवी एक बदचलन औरत है जो मुझसे छुप छुप कर उस कमरे में किसी से मिलती है। लेकिन मैं कभी एक फैसले पर कायम नहीं रहता था। कभी भी किसी भी बुनियाद पर अपनी बीवी को कोई इल्ज़ाम लगाऊं, मुझे कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। ऐसा नहीं था कि मैंने
उस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे लगता था कि मेरी बीवी 24 घंटे उस दरवाजे की निगरानी कर रही होती है। जब भी मैं उस तरफ जाता था तो मेरी बीवी किसी न किसी बात के बहाने मुझे टाल देती थी या मुझसे उसका ध्यान हटवा देती थी। मैं बहुत परेशान था। अब मुझ पर कमरा और उस दरवाजे को खोलना तारी हो चुका था, लेकिन मैं क्या करता। मैं अपनी बीवी को इस बात के मामले में बताना नहीं चाहता था। मैं खोज लगाना चाहता था, अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, मगर मैं मजबूर हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। मैं जिंदगी में खुद को उससे ज्यादा बेबस महसूस नहीं किया था। कभी कभी गुस्सा आता था। दिल चाहता था कि सब कुछ खत्म कर दूं, बीवी को तलाक दे दूं और उसके सारे काले करतूत सामने ले आऊं। मगर मैं परेशान था कि मेरे पास कोई सबूत ना था। एक दिन मैंने इरादा बना लिया कि मैं ऑफिस ना जाऊं और पूरा दिन अपनी बीवी की हरकत पर नजर रखूं। उस दिन बीवी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो मैंने उससे आराम करने की नसीहत की। मैं तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए रवाना होने का ड्रामा किया। मैंने बीवी से कहा कि तुम पलंग से खड़ी ना होना, मैं खुद ही चला जाऊंगा। बाहर के दरवाजे के पास एक अलमारी रखी थी। मैं उसके पीछे छुप गया कि मेरी बीवी को महसूस भी न हुआ कि मैं घर में मौजूद हूँ। उसने उठकर नाश्ता बनाया। मैं देखकर हैरान रह गया। वह नाश्ता लेकर उस बंद कमरे के दरवाजे को खोलकर अंदर चली जाती है और दरवाजे को ताला लगाए रखती है। जब मैंने उससे उस ताले के बारे में पूछा तो उसने कहा था कि मैंने अपना कीमती जेवर भी इस कमरे में छुपा कर रखा है, क्योंकि अगर कोई चोर आ गया तो इस कमरे को कबाड़ का कमरा समझेगा और उस कमरे की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। उसने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर नाश्ता ले गई। मैं 2 लोगों का नाश्ता देखकर बहुत हैरान हुआ और चाय के 2 कप देखकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मेरे घर में मौजूद होने के बावजूद मेरी बीवी ने किसी और को घर में रखा हुआ है। मैं गुस्से से खोल रहा था। ऐसा कौन था जिससे वह दिन रात अपने साथ रखती है और मुझसे भी ज्यादा समझती है। मैं अंदर ही अंदर तिल मिला रहा था और मान चुका था कि मेरी बीवी एक बदचलन औरत है, जिसने मेरे होते हुए भी किसी आदमी से रिश्ता रखा है। मैं यह समझता रहा मेरी बीवी किसी आसेब के साये में है। यह है या और कोई मामला है। अब मुझे बीवी से नफरत होनी शुरू हो गई थी। मेरे पैर कांपना शुरू हो गए थे। मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहा था और मेरे कदम इतने भारी हो गए थे कि उस अलमारी से लेकर बंद कमरे के दरवाजे तक का सफर मुझसे तय नहीं हो रहा था। लगता था कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है, किसी ने सर से आसमान छीन लिया है। अपने आप को इस बड़ी दुनिया में बेबस मजबूर आदमी समझने लगा था। कुछ मिनट मुझ पर इतने भारी थे, लगता था कि या तो मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा या फिर अपनी बीवी को जान से मार दूंगा। ये मैं जानता हूँ और मेरा खुदा जानता है कि मैंने उन चंद कदमों का सफ़र कैसे तय किया। अभी मैं कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो मेरे पसीने छूट गए। मेरा पूरा बदन पसीना पसीना हो रहा था। मैं दरवाजे को खोलने के लिए अपने हाथों को जंबिश दे रहा था कि दोबारा से सरगोशी मेरे कानों में आई। मैं अपने होश में ना था। मुझे सरगोशी तो पहले भी समझ नहीं आती थी, तो मैंने दरवाज़ा खोलते ही एक ज़ोरदार चीख मारी और अपनी बीवी को पुकारा, नीलम। मगर ये क्या! ये मंजर देखकर तो मैं हक्का बक्का रह गया। अभी तक अपनी बीवी को तलाक देने का इरादा रखता था। अब मुझे 1 मिनट भी बर्दाश्त न थी। अगले ही सेकंड में अपने इरादे पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। मैंने क्या देखा कि किसके लिए नाश्ता लेकर गई है। उसके हाथ में जिसके लिए निवाला था, जिसने उस निवाले को खाने के लिए अपना मुंह खोल रखा है, वे मेरी सौतेली माँ है। मैं नीलम को कितना गलत समझ रहा था। कभी उसे
जादू टोने वाली औरत तो कभी उसे बदचलन समझा। इसी तरफ मेरी चीख की आवाज़ सुनकर नीलम के हाथ से निवाला गिर गया और मेरी सौतेली माँ जो मुझे देख रही थी उसके पसीने छूटने लगे। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कदम ज़मीन में गाड़ दिए हों। अपने आप को जिंदों में पा रहा था ना मुर्दों में। नीलम इतने टाइम से मेरी माँ को बंद कमरे में छुपाई उसकी खिदमत किए जा रही थी, जो कि मेरा फर्ज था। मैं अपने फर्ज से भागना चाहता था। मैं अपनी सौतेली माँ को कभी भी अपनी माँ मानने को तैयार न था। मुझे वो शुरू से ही बोझ लगती थी। मुझे लगता था मेरी माँ की मौत की वजह भी मेरी सौतेली माँ ही है। हालांकि मैं जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे जहन से कुछ बातें बिल्कुल भी मिट नहीं सकती थीं। मैं अपनी सौतेली माँ को कबूल करने पर तैयार न था। मेरी बीवी ने कई बार मुझे दबे लफ्ज़ों में समझाया था कि माँ आखिर माँ होती है, चाहे वह पालने वाली माँ हो या चाहे पैदा करने वाली। लेकिन उस बात पर मेरी नाराज़गी ने मेरी बीवी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। नीलम ये बात जानती थी कि मैं अपनी माँ से बहुत बदज़न हूँ और मेरी सौतेली माँ बहुत मजबूरी में नीलम से मदद मांगने के लिए आई थी, क्योंकि उन्हें मेरे बाप के मरने के बाद मकान मालिक ने घर से निकाल दिया था। उसके पास रहने के कोई घर ना था। नीलम रहमदिल औरत थी। मेरी माँ को अपनी माँ जैसा मानती थी, लेकिन घर में ना चाकी ना हो, इस वजह से उसने मुझसे बात छुपाए रखी। मेरी मजबूर माँ को अपने घर में जगह भी दी। वह बहुत परेशानी की हालत में रहती थी, क्योंकि वह दोनों के बीच फंस चुकी थी। एक तरफ पति था तो दूसरी तरफ उसके दिल में रहमदिली। वह मेरी माँ को अपनी माँ का दर्जा देती थी। नीलम का इतना बड़ापन देख कर तो मैं जैसे चुल्लू भर पानी में ही डूब मरूं। नीलम को अपनी सौतेली माँ को अपने बिस्तर पर बिठा कर मैंने नाश्ता करवाया और तमाम बातें सुनकर मैं इतना रोया कि नीलम और मेरी माँ के चुप करवाने पर भी मेरी हिचकी रुक नहीं रही थी। मुझे लग रहा था कि कोई आए और मेरे हाथ काट दे। ऐसा लग रहा था मैं चोर हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी के हक पर डाका डाल लिया हूँ। आज मुझे समझ आ गई कि इंसान का किरदार होना ही सब कुछ नहीं, बल्कि अगर इंसान के दिल में रहम दिली हो तो वह नीलम जैसे लोगों की तरह बड़ापन दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक दिलचस्प कहानी के साथ।